اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم۔ نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان۔ مالک یوم الدین۔ روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آئے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تفسیر تبیان القرآن، سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 1۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حمد کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ علامہ فیروز آبادی لکھتے ہیں، حمد کا معنی ہے شکر، رضا، جزا اور حق کو ادا کرنا۔ تحمید کے معنی ہے اللہ کی بار بار حمد کرنا، اور محمد کے معنی ہے جس کی بار بار حمد کی گئی ہو۔ علامہ میر سید شریف حمد پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حمد کسی خوبی کی بطور تعظیم ثنا کرنا، خواہ کسی نعمت کی وجہ سے ہو یا اس کے بغیر۔ حمد قولی، زبان سے اللہ رب العزت کی وہ تعریف کرنا جو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی زبانوں کے ذریعے خود اپنی تعریف فرمائی ہے۔ حمد فعلی، اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے بدن سے نیک اعمال کرنا۔ حمد حالی، روح اور قلب کے اعتبار سے ثنا کرنا، مثلا علمی اور عملی کمالات سے متصف ہونا، اللہ رب العزت کے اخلاق سے متخلق ہونا۔ حمد حرفی، منعم کے انعام کی وجہ سے کوئی ایسا فعل کرنا جس سے اس کی تعظیم ظاہر ہو، عام عظیم کے زبان سے ہو یا دیگر اعضاء سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی چیز کی غیر اختیاری خوبی پر اس کی تعریف کرنا مدح ہے، مثلا یاقوت اور موتی کی خوبصورتی پر تعریف کرنا، اور کسی شخص کے انعام اور احسان پر اس کی تعظیماً ثنا کرنا شکر ہے، اور کسی کی اختیاری خوبی پر اس کی تعظیماً تعریف کرنا، خاص اس نے کوئی نعمت دی ہو یا نہ دی ہو، یہ حمد ہے۔ کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی نعمت نہ دی ہو، اس لیے اللہ رب العزت کی ہر ثنا اور ہر تعریف اس کا شکر ہے، اور اس کی ہر حمد شکر کے ضمن میں ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کیا محسن شکریہ ادا کیے جانے کا مستحق نہیں ہے، امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر محسن اور ہر منعم کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم اس سے منع نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر نعمت در حقیقت اللہ رب العزت سے ملتی ہے، اس لیے کسی منعم کے انعام اور کسی محسن کے احسان پر اس کی تعریف کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ ہر نعمت اور ہر احسان در حقیقت اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت اور اس کا احسان ہے۔ مثلا کسی بھوکے شخص کو بھوک سے بلبلاتے دیکھ کر کوئی شخص اس کو کھانا کھلا دیتا ہے، بظاہر اس شخص کا احسان ہے، لیکن غور کیجئے اگر اللہ رب العزت کھانا ہی پیدا نہ فرماتا تو وہ شخص بھوکے کو کیسے کھلاتا؟ یا کھانا تو پیدا کیا تھا لیکن اس شخص کے پاس کھانا خریدنے کے لیے پیسے نہ ہوتے تو کہاں سے کھلاتا؟ کھانا بھی ہوتا، اس کے حصول کے لیے پیسے بھی ہوتے، لیکن اس کے دل میں بھوکے کو دیکھ کر رحم نہ پیدا ہوتا تو بھوکے کو کب کھلا سکتا تھا؟ یہ سب کچھ ہوتا ہے
लेकिन भूखे आदमी में खाने की सलाहियत ना होती, मसलन इसके मुंह में नासूर होता, या ऊपर का जबड़ा निचले जबड़े पर बैठ जाने की वजह से इसका मुंह बंद हो गया होता, तो वो भूखे को कब खिला सकता था। तो नेमत भी उसने पैदा की, नेमत के हसूल पर मुनअम को कुदरत भी उसने दी, नेमत देने के लिए मुनअम में रहम का जज्बा भी उसने पैदा किया, और नेमत से फायदा उठाने की मुनअम अलैहि में सलाहियत भी उसने पैदा की। तो फिर हमदोश और शुक्र का कौन मुस्तहक होगा। इसलिए अव्वलन उसकी हमद की जाए और उसी का शुक्र अदा किया जाए। अब ये इसका करम है कि उसने ज़ाहरी वसाइल और उसबाब को भी नज़रअंदाज नहीं किया और इस ज़ाहरी मुनम और मोहसन का भी शुक्र अदा करने का हुक्म दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कमाह को हमदो सना से मखलूक का आजिज़ होना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें लामहदूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद सूरह नहल आयत नंबर 18 में है, और अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें गिनो तो उन्हें गिन ना सकोगे। तो जब हम अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते तो इनका शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं। नीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तौफीक और कुदरत के बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा नहीं हो सकता। इसलिए जब इंसान किसी नेमत पर शुक्र अदा करे तो इस शुक्र अदा करने की तौफीक और कुदरत पर भी शुक्र अदा करे, फिर इस दूसरे शुक्र की तौफीक पर शुक्र अदा करे, और यूं सारी उम्र खत्म होने के बावजूद इसकी किसी एक नेमत का शुक्र अदा नहीं हो सकता। तफसीर कबीर में मनकूल है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही अर्ज किया कि खुदाया मैं तो तेरी एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता, कुजा गैर मुतनाही नेमतों का शुक्र अदा किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ दाऊद, जब तुमने ये जान लिया कि तुम हमारी नेमतों का शुक्र अदा करने से आजिज हो तो हमारा शुक्र अदा हो गया, बस तुम अपनी कुदरत और ताकत के मुताबिक हमारा शुक्र अदा करते रहो। एक कौल यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अज़ल में इल्म था कि बंदे इसकी हम्द करने से आजिज हैं और इसकी इस्तात नहीं रखते, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अपनी हम्द की और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात व सिफ़ात और इसकी नेमतों का आरफ और इसकी हम्द व सना में रत्बुल लिसान रहने वाला कौन हो सकता है। इसके बावजूद आप बारगाहे इलाहिया में अर्ज करते हैं, मैं तेरी ऐसी सना नहीं कर सका जैसी सना तू खुद अपनी करता है। यह सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द करने के अहवाल और औकात इमाम अबू दाऊद रवायत करते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कलाम की इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं की जाएगी वो नातमाम रहेगा। इमाम इब्ने माजा रवायत करते हैं, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुहतमम बिलशान काम की इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं की गई वो नातमाम रहेगा। इमाम अहमद रवायत करते हैं कि हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ताज्जुब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिन का कैसा नसीब रखा है। अगर भलाई पहुंची तो अपने रब की हम्द करता है और इसका शुक्र अदा करता है, और अगर इसको मुसीबत पहुंची है तो अपने रब की हम्द करता है और सब्र करता है। इमाम तिरमिज़ी रवायत करते हैं कि हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक बंदा का बच्चा फौत होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से फरमाता है, तुमने मेरे बंदे का बच्चा उठा लिया? वो कहते हैं हाँ। अल्लाह फरमाता है, तुमने इसके दिल का टुकड़ा उठा लिया? वो कहते हैं हाँ। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने क्या कहा? तो वो कहते हैं तेरी हम्द की और इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मेरे बंदा के लिए जन्नत में एक घर बना दो और इसका नाम बैतुल हम्द रख दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द की फजीलत और अजर व सवाब। इमाम मुस्लिम रवायत करते हैं कि हजरत अबू मालिक अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकीज़गी निस्फ़ अमान है। अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को भर देता है और सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह आसमान और ज़मीन के दरमियान को भर देते हैं। यानी अल्हम्दुलिल्लाह या इसके अजर को अगर मुजस्सम किया जाए तो इससे मीज़ान भर जाएगी। सुबहान अल्लाह से मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तंज़ीह है और अल्हम्दुलिल्लाह से मुराद इसकी सना है। गोया आसमान और ज़मीन के दरमियान हर चीज़ अल्लाह ताला के नुक्स से बरी होने और इसकी तारीफ और सना पर दलालत करती है। इमाम अहमद रवायत करते हैं कि हजरत समरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान के बाद 4 कलाम अफजल है और वो भी कुरान से हैं। तुम इनमें से जिससे भी इब्तिदा करो कोई मुज़ायका नहीं। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर। इमाम तिरमिज़ी रिवायत करते हैं कि अमर बिन
शोएब अपने बाप से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम को सुबहान अल्लाह कहा उसने गोया 100 हज किए, और जिसने 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम को अल्हम्दुलिल्लाह कहा उसने गोया जहाद फी सबीलिल्लाह के लिए 100 घोड़े मुहैया किए। इमाम इब्ने जरीर अपनी सनद के साथ रवायत करते हैं कि हजरत इब्ने अब्बास ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है और अल्लाह की फरमाबरदारी करना है और इसकी नेमत और हदायत का इकरार करना है। नबी करीम रऊफ रहीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते हो और वह तुमको ज्यादा नेमत देगा। जिस तरह की बुराई सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को ज़ैबा है और इंसान के लिए तकब्बुर करना हराम है, इसी तरह इंसान का अय्यूब से अपनी तंज़ीह और मुहासन से खुद अपनी हम्दो सना करना मकरूह और नापसंदीदा है, क्योंकि तस्बीह और तंज़ीह और हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस्ताई से मना फरमाया और इसको नापसंदीदा करार दिया है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, सूरह नजम आयत 32, खुद इस्ताई ना करो, परहेजगारों को वही ज्यादा जानता है। अल्लामा आलूसी इस आयत के शान नुज़ूल में लिखते हैं कि यह आयत जिन मुसलमानों के हक में नाजिल हुई जो नेक अमाल करते फिर अपनी नमाजों और हज का जिक्र करते फिरते हैं। अल्लामा कुर्तुबी ने लिखा है कि जब यहूद और नसारा ने अपनी तारीफ की और ये कहा कि हम अल्लाह के बेटे और इसके महबूब हैं, और बाज़ रिवायात में है कि यहूदियों ने कहा हम बच्चों की तरह गुनाहों से पाक हैं, तो ये आयत नाजिल हुई। सूरह निसा आयत 49, क्या आपने उनको नहीं देखा जो अपनी पाकीज़गी का दावा करते हैं, बल्कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है पाकीज़ा बना देता है। इमाम मुस्लिम रिवायत करते हैं कि इब्ने अता कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी का नाम बिरा नेकोकार रखा। मुझसे हजरत ज़ैनब बिनते अबी सलमा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाम से मना फरमाया है। मेरा नाम पहले बिरा था यानी नेकी करने वाली, तो मेरा नाम ज़ैनब रखा गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खुद सताई ना करो, अल्लाह ही खूब जानता है कि तुम में से नेकी करने वाला कौन है। साहबा ने पूछा, फिर हम इसका क्या नाम रखें? आपने फरमाया, इसका नाम ज़ैनब रखो। कुरान मजीद की इन आयात और इस अहदीस से ये वाज़ेह हो गया कि इंसान खुद अपनी तारीफ और हम्दो सना करना और अपने आप को अयूब और कबाइल से बरी और पाक दामन कहना अल्लाह रब्बुल इज्जत और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक नापसंदीदा है। तस्बीह और तंज़ीह और हम्दो सना सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ही को ज़ेबा है। वही हर ऐब और नुक्स से पाक है और वही तमाम खूबियों और कमालात का जामे है और वही तमाम तारीफों और हम्दो सना का मुस्तहक है। ताहम अगर किसी गर्ज़ सही की वजह से इंसान अपनी तारीफ करे तो ये जायज़ है, जैसे हजरत उस्मान ने बागियों के सामने अपनी तारीफ और तौसीफ की ताकि वो बागी बगावत से बाज आ जाएं और इन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुज्जत तमाम हो जाए।